Perfect. All right. All right, children, listen. You'll have the class on the application in the Play Store. This class will be uploaded. The ones who missed this class or want to recheck what was taught to you, you can just have a video recording in the application. You can watch it anytime you want to. So we are recording it for your benefit. Whenever you want to have an access to it, you can easily do it on the application of Incredibles. And I'll be guiding you people to how to install it. Alright? I'll be guiding you people about it today. iOS में होती है? Yes, Vijay? iOS में नहीं होती? We'll provide that also very soon. It's in process. It's in process. Okay? Alright, please carry on. I'll just read it. Yes, first read out the heading. What the heading says? The Scarlet Pimpernel of the Vatican. हाँ जी, I think heading ही काफी टफ है अपने आप में, है ना? I think heading समझ में भी नहीं आई होगी कि what is the heading, what the heading exactly is about. नहीं समझ में आई ना? हाँ जी, heading बेटा heading. Yes, this heading. Topic जो given है, heading जो है, ठीक है? देखिए, जो Scarlet है, SCARLET, इसका जो मतलब होता है वो एक रेड कलर से रिलेटेड है, बिल्कुल ब्लड रेड जो कलर होता है ना, उससे रिलेटेड होता है इसका मीनिंग स्कार्ड, ठीक है? और जिन्होंने ये यूज किया है इकट्ठा स्कार्लेट पिम्परनेल, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है हीरो, ठीक है? क्या मीनिंग है? हीरो ऑफ द वेटिकन. आई थिंक यू ऑल नो दैट वेटिकन इज अ सिटी इन रोम. मालूम है ना? वेटिकन इज अ सिटी ऑफ रोम. तो इन्होंने हेडिंग दिया है not talking in the last what is your name? Hanji beta, please do not talk. The Scarlet Pimpernel of the Vatican, मतलब the hero of the Vatican. इसमें जो पैसेज है उसमें किसकी बात की है? एक पर्सन की बात की है. अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है? He is being considered the hero of the Vatican city. Is it clear? समझ में आ गया? Okay. Yes. Move to question number 14. O'Flaherty went to Rome. ठीक है? अब क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि what was his agenda of going Rome जाने के पीछे उसका पर्पस क्या था? What was the purpose of O'Flaherty of going Rome? क्या पर्पस था उसके पीछे? ठीक है? Okay. How many of you have marked option D? How many of you have marked option D? Very few people in the class. Okay. And what majority of people have marked? Yes. Hanji. Okay. A. How many of people have marked A? Okay. B. Okay. Option B. Done. चलो. Let's move on to the first paragraph first. उसको पढ़ते हैं फिर उससे समझ में आएगा. ठीक है? Born in Kiskeen in a mother's native North Cork, Hugh O'Flaherty was brought up in Killarney, where his father was the steward of a local golf club. ठीक है? क्या बोला गया जी? What is the meaning of his mother's native? What is the meaning of his mother's native? Yes, the place from where his mother used to belong. मतलब अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि नेटिव प्लेस क्या होता है कि वो प्लेस जहाँ से आप उसकी जो मदर है वो क्या करती थी? बिलोंग करती थी. ठीक है? यानी कि जो O'Flaherty था वो कहाँ बोर्न हुआ था? उसके मदर्स के नेटिव प्लेस पे, यानी कि जो उसकी मैटरनल जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसके प्लेस पे. मालूम है ना मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स? क्या मीनिंग होता है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का? यस. और पैटर्नल रिलेटेड टू फादर. इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, मैटरनल मदर, पापा से रिलेटेड पैटर्नल. इसको कंफ्यूजन होगी. क्लियर है? उसके आगे he was the eldest of 4 children and from an early age appeared to have a vocation for the priesthood. बोला कि वो क्या था? eldest of 4 children. इसका मतलब he has 4 siblings. 4 भाई बहन थे वो, और उन चारों में से सबसे क्या था? बड़ा था. And
appeared to have a vocation for the priesthood. What is the meaning of vocation? हाँ जी. Interest. No, that is vacation. That is vacation. Profession. Have a vocation for the priesthood. हाँ जी. Interest. Yes. बेटा देखो एक बात सुनो. Vocation, vacation, vacation का meaning holidays. Vocation का मतलब नहीं पता मान लो. Suppose करो कि you do not know the meaning of vocation. पर एक बात बताओ, यहाँ पे बात की गई है from the early childhood. ठीक है. Appeared to have a vocation for the priesthood. मतलब कि बचपन से ही कोई जॉब थोड़ी कर रहा होगा. वोकेशन का मतलब कि इंटरेस्ट रहा होगा उसका. अपने आप मीनिंग बना लो, आराम से वही मीनिंग बन रहा है. समझ रहे हो यहाँ पे? अब बोला कि बचपन से ही एंड फ्रॉम एन अर्ली एज अपीयर टू हैव अ वोकेशन फॉर द priesthood. और बचपन से ही क्या है उसका जो इंटरेस्ट रहा वो किसमें रहा? priesthood. What is the meaning of priesthood? Yes. priest का मीनिंग क्या होता है? P-R-I-E-S-T. priest किसको बोलते हैं? पुजारी को बोलते हैं. यानी कि क्या था उसका जो शौक था ना, मतलब वो सारे काम करने में था जो एक पंडित करता है. What actually a priest does, उसका स्टार्टिंग से ही जो इंटरेस्ट है वो उसी में रहा है. क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद his fondness for the church. What is the meaning of fondness? हाँ जी, liking. बोल सकते हैं ना liking. शौक. His fondness for the church was formed in part during his education, which began at Presentation Brothers School in a local monastery in his hometown. बोला कि इसकी his fondness of church was formed in part during his education. जो उसकी fondness थी, जो उसकी liking थी, वो कब शुरुआत हुई? जब वो कब था? जब वो स्कूल में था. और उसके स्कूल का नाम क्या था? Presentation Brothers School in a local monastery in his hometown. ठीक है, यानी कि इसके होम टाउन में एक लोकल मोनेस्ट्री थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्री? हाँ जी, मोनेस्ट्री क्या मीनिंग होता है? रिलीजियस प्लेस को बोला जाता है. ठीक है, बेसिकली एक रिलीजियस प्लेस को क्या बोला जाता है? मोनेस्ट्री बोला जाता है. ही लेटर अटेंडेड वॉटरफोर्ड कॉलेज, और बाद में उसने कौन सा कॉलेज अटेंड किया? वॉटरफोर्ड. बट द priesthood was always going to be his calling. लेकिन जो priesthood था वो हमेशा से उसकी प्राइमरीली चॉइस रही. ठीक है, क्या वर्डिंग यूज किया है? was always going to be his calling. It means priesthood जो था उसको जो है priesthood ने हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था. होता है ना स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड यू हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग समथिंग, है ना. और आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाते हो ना, वो चीज आपको कहीं ना कहीं अगर आप उसको अचीव कर लेते हो वेल एंड गुड. अगर नहीं करते हो एंड तक आप जब बूढ़े भी हो जाते हो तब भी आपके मन के अंदर रहता है कि मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन होता है कि जिसके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होती है या स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है. ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट आप उस प्रोफेशन को परस्यू कर पाए या नहीं कर पाए, फिर भी एक पर्सनल उसके साथ हमारा लिंक रहता है. सेम थिंग उसके साथ थी. ठीक है, कि पहले उसके स्कूल बचपन से ही क्या था? बचपन से ही उसको इंटरेस्ट था किसमें? priesthood में. ठीक है, फिर उसने अपनी लोकल स्कूल में पढ़ाई की जो कि एक मोनेस्ट्री में था वो स्कूल. फिर लेटर उसने क्या ज्वाइन किया? कॉलेज ज्वाइन किया. बट देन ऑल्सो इन कॉलेज ऑल्सो जो उसकी कॉलिंग, जो उसका लाइकिंग थी वो किसके साथ रही? वो priesthood के प्रोफेशन में ही रही. आगे बढ़िए. सो ही अप्लाइड टू मंगरेट कॉलेज इन लिमर्क and was accepted into the seminary there. ठीक है, और क्या हुआ? तो इसीलिए उसने क्या करा? एक मुंगरेन कॉलेज में क्या किया? ज्वाइन किया and was accepted into the seminary there. He was posted to Rome as a young seminarian in 1922, the year in which Mussolini came to power. While studying in Rome, he earned a degree in theology. अब जरा repeat this line. यहां से पढ़ना शुरू कीजिए. He later attended Waterford College, but the priesthood was always going to be his calling. So he applied to Mungret College in Limerick. क्योंकि ना उसकी लाइकिंग priesthood के साथ थी, तो उसने इस कॉलेज को ज्वाइन किया. ठीक है, and was accepted into the seminary there. और उसको वहां पे as a मतलब सेमिनरी की तरह उसको एक्सेप्ट किया वहां पे. He was posted to Rome. ठीक है, यानी कि अपनी उस जॉब की वजह से ही तो वो रोम में गया था. सपोज करो आपको, मान लो आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, यू हैव टेकन एडमिशन इन सम इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ योर चॉइस. ठीक है, आपने मान लो वो दिल्ली में था वो कॉलेज, आपने अपने इंटरेस्ट की वजह से उसमें एडमिशन लिया. लेटर ऑन आपकी वहां से प्लेसमेंट हो गई और आपको मान लो रोम पोस्ट कर दिया गया, है ना.
तो आप किस वजह से रोम गए थे? अपनी जॉब की वजह से रोम गए थे ना. यू वेंट टू रोम बिकॉज ऑफ योर जॉब. अपनी जॉब की वजह से तो आप रोम गए थे, है ना. और ऑप्शन डी में क्या था? ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ही वाज अ पार्ट. उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की इंस्ट्रक्शन पे जिसका वो एक हिस्सा था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? जस्ट बिकॉज देखो, यू हैव टेकन एडमिशन इन योर कॉलेज बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइस, you have completed the course and later on you are being placed from there to any another city. तो आप उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे तो जा रहे हो ना बाहर. बात समझ में आ रही है? उसी की वजह से तो बाहर जा रहे हो, ठीक है. अच्छा, जिसने आप ऑप्शन ये लगाया था voluntarily, what is the meaning of voluntarily? हाँ जी, जानबूझकर, अपनी मर्जी से. What is the meaning of voluntarily? अपनी मर्जी से. Voluntarily for personal reasons as he wanted to pursue his studies there. कह रहे वो अपनी मर्जी से गया था क्योंकि वो अपनी पढ़ाई वहां करना चाहता था. But no, this is not the fact. उसने पढ़ाई तो कॉलेज में कंप्लीट कर ली थी, बट क्योंकि उसको जॉब रॉब में मिली थी, है ना. जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो कनेक्टेड था उसने उसको प्लेस कर दिया था कहां पे? रोम में. तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा. समझ में आ गया? ओके, गो फॉर बी. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज एट मुंगरेट कॉलेज इन लिमक एंड बिकमिंग अ प्रिस्ट. अब ये क्लोज ऑप्शन था, इसको क्लोज ऑप्शन कंसीडर कर सकते थे. प्रिस्ट की बात नहीं, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज एट मुंगरेट कॉलेज इन लिमक एंड बिकमिंग अ प्रिस्ट. लेकिन वहां कोई ऐसे प्रिस्ट बनने की बात नहीं हुई थी. तो ये दो क्लोज ऑप्शंस थे. और जो डी था वो बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट जा रहा था कि उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की इंस्ट्रक्शन पे जिससे वो कनेक्टेड था. दैट्स व्हाई ही वेंट टू रोम. इज इट क्लियर? पक्का? Anybody is having doubt in this question? Okay, come to question number 15. O clarity golfing challenge. हाँ जी. How many of you have marked answer number A? Answer A. How many of you have marked answer A? Please raise your hands. Bhavna, you did it wrong? Yes. What have you marked? A. हाँ तो आंसर यही है ना. हाँ जी, चलिए. ओ फ्लैटरी गोल्फिंग टैलेंट्स. अभी हमने पढ़ा था ना कि इसकी जो लाइकिंग थी, इसको जो गोल्फ का टैलेंट था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था. शैल वी रीड दैट पैराग्राफ? ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया अच्छे से? क्या क्रक्स निकला इसका? देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में शुरू में क्या बात हुई थी कि बॉर्न का हुआ था, ये बता दिया, ठीक है. बचपन से लाइकिंग थी प्रेस्टहुड में. उसके बाद उसने लोकल जो स्कूलिंग थी वो एक मोनेस्ट्री में की, ठीक है. देन लेटर ऑन ही अटेंडेड अ कॉलेज, है ना. एंड आफ्टर दैट ही वाज पोस्टेड टू रोम ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन टू हुम ही वाज कनेक्टेड. ठीक है, जिस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कनेक्टेड था उसकी वजह से ही वो रोम गया. क्लियर है? यस, नेक्स्ट पे आइए. ओ क्लैरिटी posted at various times over the next few years in Egypt, Haiti, San Domingo and Chesapeake. और ये जो है मतलब ये क्या दिए हुए कि उसके बाद है ना वो काफी जगह पे उसको पोस्ट किया गया, यानी कि आफ्टर रोम उसको इन जगहों पे पोस्ट किया गया. Palestine soon proved himself a very able diplomat. His golfing skills were also noted. उसके गोल्फिंग स्किल्स को भी नोट किया गया. एंड ही डेवलप्ड अ नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल कनेक्शंस इन इटली थ्रू द वर्ड ऑफ गोल्फ. यहां पे जाइए, यही आंसर है, ठीक है. बोला कि उसके जो गोल्फिंग टैलेंट्स थे ना, स्किल्स थे, वो इतने ब्रिलियंट थे कि पीपल नोटेड दैट, है ना. फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर मान लो किसी के भी ऐसे स्किल्स होते हैं तो वो जनरली पता चल जाते हैं कि इस पर्सन की ये स्किल्स है, ठीक है. और उसी स्किल्स की वजह से क्या हुआ कि डेवलप्ड नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल कनेक्शंस. ठीक है, उसने बहुत सारे हाई प्रोफाइल कनेक्शंस बनाए थे अपने उसी गोल्फिंग टैलेंट की वजह से. समझ में आया? ठीक है. और जो आंसर नंबर ए है उसमें पढ़िए, वर एक्सप्लॉइटेड बाय हिम एज अ मींस बाय विच टू मीट एंड इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट पीपल. हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नो द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेड? गेस कर दिया. यस, गेस ही करना पड़ेगा. एक्सप्लॉइटेड का मीनिंग वैसे डिफरेंट होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेड इन जनरल? एक्सप्लॉइट करना मतलब यस, है ना. एक्सप्लॉइट का अगर हम जनरल मीनिंग नेगेटिव सेंस में है ना, मतलब ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉइटेशन
ऑफ वर्कर्स होता है, मतलब कि उसे ज्यादा काम लेना, ज्यादा काम लेने का मतलब टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देम, और पर्टिकुलरली यही ये वर्ड यूज किया है। मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब आप मीनिंग ये लिख सकते हो कि किसी चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, या ओवर यूटिलाइजेशन करने को एक्सप्लॉइट बोल सकते हो, है ना। सोशल एक नेगेटिव सेंस में चला गया। अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो किसी भी चीज का जब आप ओवर यूजेज करते हो या मैक्सिमम उस चीज से फायदा लेने की कोशिश करते हो, निकाल सकते हैं, और सेम मीनिंग यहाँ पे यूज हुआ है। हाँ जी, निकल रही है उससे बात। अगर आप एक्सप्लॉइटेशन बोलते हो, पढ़ते हो ना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स इज बीइंग डन बाय एम्प्लॉयर्स समटाइम्स, है ना। कई बार हम बोलते हैं कि वर्कर्स को कई बार एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है उनसे ज्यादा काम लेके। एक्सप्लॉइट का मतलब ज्यादा काम लिया गया उनसे, मतलब जितना हम उनसे काम निकाल सकते थे उतना हमने निकाला। तो सेम वे में यहाँ पे पेरेंटी ने क्या किया था कि अपने गोल्फिंग टैलेंट से जितने वो कॉन्टैक्ट्स बना सकता था उतने उसने कॉन्टैक्ट्स बनाए। इट मींस उसने अपने स्किल का ओवर यूजेज किया था, एक्सप्लॉइट किया था अपने इस यूज को। एक्सप्लॉइट का मतलब टू हैव मैक्सिमम यूजेज ऑफ समथिंग, किसी चीज का मैक्सिमम यूजेज किया था, तो उस सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, पढ़िए। वर एक्सप्लॉइटेड बाय हिम, अगर मैं इसकी जगह ये लगा दूं, मतलब विच इज इट, मतलब ही यूज्ड, ही मतलब उसने क्या किया था, मैक्सिमम इसका यूजेज किया था। उसके जो गोल्फिंग टैलेंट्स थे वर एक्सप्लॉइटेड बाय हिम एज अ मींस बाय विच टू मीट एंड इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट पीपल। इसका मतलब उसने अपने गोल्फिंग टैलेंट का यूज किया था लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। डू यू गेट दैट? हाँ जी। और पीछे सेम बात बोली है, रिलेट कीजिए इस बात से। क्या बोला है? His golfing skills were also noted and he developed a number of high profile connections in Italy through the word of golf. उसके गोल्फिंग टैलेंट था और उसकी वजह से उसने हाई प्रोफाइल कनेक्शंस बनाए थे। और यहाँ पे तो यही बात कह रहा है कि exploited him as a means by which to meet and influence important people. बिल्कुल साफ रिलेट कर रहे हैं, समझ में आ गया? कोई डाउट? सी पढ़ते हैं क्या है? Went unnoticed until he was posted in Italy, where they impressed a number of high-profile individuals. कहाँ given है ये सब है? Then notice his golfing skills were also noted, and he developed a number of high-profile connections. और अच्छा जी, देखिए मेरी बात सुनो। जब वो वहां गया तो उसके स्किल्स को नोट किया गया, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उससे पहले नोट ही नहीं हुए थे उसके गोल्फिंग स्किल्स। हाउ कैन यू से दैट? ऐसे तो गिवन ही नहीं है पैराग्राफ में। देखो ठीक है, आपको डाउट हुआ। देखो बेटा सी, देखिए सी में ये क्या कह रहे हैं? Went unnoticed until he was posted in Italy, where they impressed a number of high-profile individuals. इसने ये बोला कि जब तक वो इटली में पोस्ट नहीं हुआ था ना, तब तक उसके स्किल अननोटिस थे। बट वी कांट से दैट। हमें क्या पता नोटिस थे या नहीं थे? हमें तो इटली की भी बात कह दी है कि जब वो इटली में गया ना, तब उसके स्किल्स को नोटिस किया गया। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि पहले भी जहां पे था वहां पे भी नोट किया उसके स्किल्स को, बट दैट इज नॉट गिवन। वो तो गिवन ही नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। लेकिन ये जो ऊपर वाली बात है ना, ये साफ गिवन है आपको, बिल्कुल साफ सुथरी गिवन है कि उसने अपने स्किल्स को एक्सप्लॉइट किया, उसका ओवर यूजेज करके उसने कनेक्शंस बनाए थे वहां पे इटली में, और ये बात साफ गिवन है। आप देखो सब है यहाँ पे, आपका ठीक था, वैसे ये गलत था। अब देखो क्या कहते हैं कि एमसीक्यूज में ना आपको कई डाउट तक क्लोज ऑप्शंस देखने होते हैं, ठीक है। अब किसने सी लगाया था? ओके ओके, चलो ठीक है। इसके अलावा किसी ने लगाया बी या डी? पहले उसकी बात करते हैं फिर सी पे आते हैं। बी लगाया किसी ने? एनीवन? ओके, हम अलग चलेंगे। Yes, ma'am. है ना? Yes. Okay. What the product of his extremely hard work and tireless practice from a young age, विपिन nowhere given. कहीं पे भी given नहीं है कि उसके हार्ड वर्क और टायरलेस एफर्ट की वजह से था। पढ़े नीचे? पढ़े? नहीं, अभी पढ़ते हैं, देखिए नीचे आइए। These people were no doubt impressed by the golfing talents of the man. ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना, those people who are aiming for 7 और 7+, ये जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना, उसकी लैंग्वेज चेक करना एक बार, ठीक है। लैंग्वेज एक बार चेक करना किस तरीके से उसने लिखा हुआ है, किस तरीके से पंक्चुएशन का यूज किया हुआ है। Those people were no doubt impressed by the golfing talents of the man, कोमा, ठीक है। These people का मतलब किनकी बात हो रही है? High profile. Yes, high profile people were no doubt impressed by the golfing talents of the man, ठीक है। यानी कि उसके गोल्फिंग टैलेंट से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। कोमा, which were, किसकी बात? उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। which were considering he had been playing the game, which were टैलेंट की बात नहीं हो रही, मैम which were
which were considering he had been playing the game since early childhood and was a natural. वो ये कंसिडर कर रहे थे कि वो क्या है, बचपन से ही अच्छा रहा होगा इस गेम में। मतलब ये किस सेंस में यूज किया, उन्होंने ये बोला है these people were no doubt impressed by the golfing talents of man which were, ठीक है, अगर आप टैलेंट के फॉर्म में मिलो, talents considering he had been playing the game since early childhood and was a natural, by then rather impressive to say the least। मतलब उनको ऐसा, उसके टैलेंट्स जो थे उसको ऐसा कंसिडर किया जा रहा था, उसके टैलेंट्स को ऐसा कंसिडर किया जा रहा था कि बचपन से ही वो ये गेम खेल रहा है एंड वाज अ नेचुरल, और वो एक नेचुरल प्लेयर था, है ना, ही वाज अ नेचुरल प्लेयर, बाय देन रादर इंप्रेसिव टू से द लीस्ट। और उसके बारे में मतलब कहना क्या था, मुश्किल था, से द लीस्ट। क्लियर है? तो मतलब देखो यहाँ पे कोई कहीं बात नहीं है कि उसने हार्ड वर्क किया था, ठीक है। कोई ऑप्शन बी में क्या लिखा है, व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्सट्रीमली हार्ड वर्क एंड टायरलेस प्रैक्टिस फ्रॉम अ यंग एज। पर वो तो उनकी असम्पशन थी ना, जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो जस्ट एज्यूम कर रहे थे, मान रहे थे कि हो सकता है कि बचपन से ही वो खेल रहा हो और वो एक नेचुरल प्लेयर हो। हार्ड वर्क किया उन्होंने खेलना तो बेटा वो एज्यूम कर रहे थे और वहां पे वो कह रहे हैं कि वो नेचुरल प्लेयर, कि वो हार्ड वर्क किया उसने। कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज में। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि यू आर अ नेचुरल इंग्लिश स्पीकर, सपोज आई एम एज्यूमिंग कि यू आर अ नेचुरल इंग्लिश स्पीकर, ठीक है, बट यू हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम लास्ट 2 years to improve your speaking, but I don't know that। तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ और आपकी सच्चाई कुछ हो रहा है। Isn't there any difference between that? कोई डिफरेंस नहीं है उस चीज में। हाँ जी, यहाँ पे वो ये कंसिडर कर रहे थे वो लोग कि क्या था, कि वो एक नेचुरल प्लेयर था और बचपन से ही वो खेल रहा था, और वहां पे वो देंगे कि वो एक हार्ड वर्कर था, उसने हार्ड वर्क से इस गेम को सीखा था। हाँ जी, वहां पे बात स्ट्रेट कर रहे हैं, वो फैक्ट की तरह यूजेस कर रहे हैं इस बात को। हाँ जी, समझ में आया बच्चे? नहीं आया, शक्ल से नहीं लग रहा। मैं ये लाइन समझा ना, बाय देन समझ नहीं आई। By then rather impressive to say the least, मतलब वो इतने इम्प्रेस थे कि कुछ ज्यादा कहना मुश्किल था उनके लिए। Say the least, by then का मतलब उस समय तक, rather impressive to say the least, इतने इम्प्रेसिव थे कि कहना उनके लिए मतलब they were short of words, they were assuming कि he was playing since childhood and was a natural player। सपोज यहाँ पे किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि he is a natural speaker, है ना, his parents might have helped from his childhood to become a good English speaker, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। और एक फैक्ट की तरह आपको दे दिया, वहां पे फैक्ट की तरह चीज दी हुई कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया था। आप कैसे कह सकते हो उसने हार्ड वर्क किया था, until unless given in that। हाँ जी, नहीं पता आपको, गिवन ही नहीं है, जो फैक्ट गिवन नहीं है उसको आप कैसे लगाओगे फिर? देखो विपिन, क्या होता है एमसीक्यूज में, जो बात आपको स्ट्रेट अवे गिवन है, ठीक है, अगर कई बात होती ना कि वो बचपन से खेल रहा था, है ना, तभी हार्ड वर्क किया था उसने, एक तो कोई अज्यूम ही कर रहा है कि वो मान रहे थे ऐसा था, लेकिन हमें नहीं पता उसने हार्ड वर्क किया था, उसने सीखा था, वी डू नॉट नो अबाउट दैट, हमें नहीं पता उस बात के बारे में। डिफरेंस है ना, तो बी तो आना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद आइए, हाँ जी, डी किसने लगाया था? हाँ जी, डी किसने लगाया बेटा? ओके, हाँ जी, क्या गिवन है? वर exaggerated by friends and connections in order to win him favor with the German and Italian authorities। हाँ जी, क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है इसका? exaggerate करना किसी को क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, मतलब उसके फ्रेंड्स और कनेक्शन है ना, उसको बढ़ा चढ़ा के ये बात बोल ली थी, किस लिए? उससे कोई फेवर लेने के लिए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। हाँ जी, मतलब हम किसी को एग्जैजरेट करते हैं तो क्या होता है, मतलब उसका कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं उसमें कि हम ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी से कोई काम निकलवाना है, हम सारी करते हैं ये चीज, तो क्या करते हैं, बड़े प्यार से बहला फुसला के ना मीठी गोली देते हैं उनको और काम निकलवा लेते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है अभी इसमें, है ना, तो ये नहीं आएगा इसमें। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है इसमें, कट हो गया डी। सी पे आते हैं, went unnoticed until he was posted in Italy where they impressed a number of high profile individuals। चलो सपोज करो सी और डी में ना आपका डाउट है, एलिमिनेशन मेथड समझाया हुआ आप सबको, किस तरीके से एलिमिनेट करना है, और
एलिमिनेशन में क्या समझाया था, आपको दो क्लोज ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है, दो क्लोज ऑप्शंस में से वो ऑप्शन लेने जिसकी वर्डिंग आपके टेक्स्ट से मैच कर रही हो, यही बात सिखाई थी ना, ठीक है। मान लिया चलो ठीक है, वहां पे ये बात लिखी थी कि हिज गोल्फिंग टैलेंट्स वर नोटेड, और आपने ये लगा लिया कि मतलब पहले अनोटिस थे। पहले तो ये असम्पशन हम कर नहीं सकते, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो हम असम्पशन ये नहीं कर सकते कि पहले अनोटिस थे उसके गोल्फिंग टैलेंट्स, हमें नहीं पता कि वो पहले कहां गया। बात ही इटली में उसके गोल्फ टैलेंट्स की बात हुई है, उससे पहले उसकी गोल्फ टैलेंट्स की कोई बात नहीं हुई, हमें नहीं पता उसके गोल्फ टैलेंट्स को नोटिस किया गया नहीं किया गया, वी कैन नॉट से दैट, और नॉर हम कुछ नहीं कह सकते। पहली बात तो इससे ही आंसर नहीं आएगा। सपोज करो आपका, मान लो आपने लगा भी दिया वहां पे पेपर में, सपोज करो आपको बहुत डाउट हो रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आपको क्या समझाया हुआ है, दो क्लोज ऑप्शन में से ना जिसकी लैंग्वेज मैच कर, लैंग्वेज का मतलब क्लियर मीनिंग स्टेट कर रखा हो ना, है ना। जैसे हमने कल भी एक पढ़ा था ना कि दो आंसर्स बिल्कुल ठीक थे, है ना, लेकिन हमने वो बात ली थी जिसकी कॉन्टिन्यूटी चल रही थी। समझाया था ना कल, किसने गलत की थी वो बात, कनेक्टिविटी वाली बात ली थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लिया कि आपको आपके दोनों ऑप्शन है ना, बात ठीक कही गई है, सपोज करो, वैसे तो इसमें आप ये तो गलत है, इसमें तो हम अज्यूम नहीं कर सकते ऐसा। अगर मान लो आपको फिर भी डाउट हो रहा है, ए ऑप्शन में ना सेम बात कही है पीछे, और वर्डिंग सिर्फ सिनोनिम्स को, उसने लैंग्वेज को चेंज करके बात यहाँ पे अलग लिख दी, बात सेम है। सपोज क्लियर हो गया। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपने एलिमिनेशन लगाना है, एलिमिनेशन में सबसे पहले वो निकालो जो है ही नहीं। बताया था ना कुछ नॉट गिवन होते हैं जिनके बारे में बात नहीं, जैसे डी है, डी के बारे में बात ही नहीं है, नॉट गिवन है, सबसे पहले ये निकालो, इसको कट करो, है ही नहीं जो। एक कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ऑपोजिट बात कही होती है, उसको निकाल दो, और वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी भी आप तभी निकाल सकोगे जब टेक्स्ट को ढंग से पढ़ोगे, है ना। लेकिन स्किम रीडिंग करके ना आप ये तो बता सकते हो इसकी बात तो है ही नहीं इसमें, है ना। नॉट गिवन वाला एलिमिनेट करो, कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमिनेट करो, उसके बाद सपोज करो दो ऑप्शंस रह गए, क्लोज ऑप्शंस है, बात दोनों की है, बात दोनों की है, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स उठानी है जो उसमें की गई है। क्लियर है विपिन, आप शायद थे नहीं, आपने वो क्लास लगाई नहीं, एक हमने एमसीक्यू की क्लास लगाई थी पीछे, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड में आपको जैसे चार ऑप्शंस गिवन है, चार में से पहले वो एलिमिनेट करो जिसकी बात ही नहीं है, कट कर दो, ठीक है। कई बार तो दो तीन ऑप्शंस ऐसे आते हैं तीनों की बात ही नहीं होती, एक ही बात होती है बस उसमें, ठीक है। और एक ऐसा निकालो जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब वहां कुछ और का है या उल्टी बात कर दी उसने, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा, उसको निकालो, उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो। उसके बाद सपोज करो दो क्लोज ऑप्शंस रह गए, जैसे इसमें रह गए दो क्लोज ऑप्शंस आपके पास, वेंट अननोटिस्ड और एक ऊपर वाला। उसमें आपको करना क्या है, हमेशा क्या होता है टेक्स्ट के अंदर है ना, आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज गिवन होती है आंसर की, जैसे यहाँ पे गिवन है ना, सेम लैंग्वेज गिवन है, और यहाँ पे साफ लिखा है he developed a number of high profile connections in Italy through the word of golf। उसने गोल्फ के थ्रू बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल कनेक्शंस बनाए थे इटली में, और वहां पे साफ लिखा है were exploited by him as a means by which to meet and influence important people। सिर्फ सिनोनिम्स का, लैंग्वेज का उसने डिफरेंस डाला है, बात सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो हमने उस ऑप्शन पे जाना है जिसकी वर्डिंग वहां से मैच कर रही होती है, और उसको छोड़ देना जो क्लोज ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है ओपन? ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी करनी है एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। पहले वो निकालो जो नॉट गिवन है, स्टेटमेंट गिवन ही नहीं है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। सेकंड नंबर पे वो निकालो जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट बात कही है। सपोज करो दो क्लोज ऑप्शंस रह गए, जिसकी लैंग्वेज से मैच कर रही होगी उसको आपने टिक मार्क करना है, अदर उसको बाकी उसको छोड़ देना है। और मान लो कोई कनेक्टिविटी में है तो फिर कनेक्टिविटी वाला लेना है, जो कल बताया था मैंने आपको, कोई बात कही गई है और उसके ही कंटेक्स्ट में, उसी पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में दो बातें हैं और दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बात से रिलेटेड कोई बात चल रही थी ना, तो उस बात को आप लोगे। जैसे कल बताया था ना, ठीक है, कि वो पढ़ने की, वो राइटिंग में तो अच्छा था पर रीडिंग में अच्छा नहीं था, एक ऑप्शन ये था, ठीक है। फिर दूसरी मैंने उसी के बारे में ना कोई ऐसी बात कह दी जो सच तो थी, गलत वो भी नहीं थी, गलत हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन हम कौन सी बात लेंगे जो उस बात की कनेक्टिविटी में थी, उसको हम ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे। कल था ये वाला प्रॉब्लम, है ना। बात दो बिल्कुल, दोनों उस पैसेज का बिल्कुल सही बात थी, लेकिन हमने उस ऑप्शन को कंसिडर किया था जो उसकी कनेक्टिविटी के अंदर चल रहा था, जो उस बात को कंप्लीट कर रहा था। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। व्हेन इट केम टू नाजी आइडियोलॉजी, ओ फेरिटी बिलीव्स। हाँ जी, अब नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बात हुई है। कौन से पैराग्राफ में बात है इसकी?
नहीं, थर्ड में है। हाँ जी, यहाँ से रीड कीजिए। इन द ऑटम ऑफ 1940। हाँ जी, ऑटम क्या है? 1 मिनट जिसे पूछूंगी वही बताएगा। हाँ जी, ऑटम मतलब वेदर का ही मतलब सीजन होता है। हाँ सीजन ओके, कौन सा सीजन होता है? पतझड़ यस, पतझड़, जिसमें लीव्स फॉल होते हैं ट्रीज से। ठीक है। इन द ऑटम ऑफ 1942 द जर्मन्स एंड इटालियंस started to crack down on prominent figures they viewed as being hostile to their goals. What is the meaning of hostile? Hostile. Hostile. रहने देना मैम किसी को, हाँ? किसी को रहने देना। नहीं, hostile Vulnerable. मतलब उस टाइम में लॉयल no. बेटा नहीं भी पता ना तब भी निकल जाएगा मीनिंग साइड में आगे टेक्स्ट से। हाँ जी, उनको पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव है ऑब्वियसली, आगे बात ही पूरी नेगेटिव हुई है। इनके गोल खत्म हाँ, मतलब यस, एनवे से रिलेटेड है। ठीक है। हॉस्टाइल टू देयर गोल्स का मतलब उनके गोल्स के जो विपरीत थे ना, उन पे उनका अटैक था। यानी कि सपोज करो कि मान लो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी फार्मर्स है ना, फार्मर्स आर बीइंग हॉस्टाइल टू द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के गोल्स क्या है कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आए, लेकिन फार्मर्स है ना हॉस्टाइल, मतलब ऑपोजिट है उनके गोल्स के। तो क्या हुआ? इन द ऑटम ऑफ 1942 द जर्मन्स एंड इटालियंस started to crack down on prominent figures they viewed as being hostile to their goals. यानी कि जो उनके गोल्स के रास्ते में आ रहे थे ना, मतलब पाथ में आ रहे थे, अब उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। कौन? जर्मन और इटालियन। यानी कि वही बात है कि अपने गोल्स अकम्प्लिश करने के चक्कर में ना, जो उनके रास्ते में आ रहे थे ना, they were trying to avoid them as their policies became more and more extreme. हाँ जी, extreme policies किसको बोल सकते हैं हम? हाँ जी, यस, मतलब क्या है, बहुत ही गूढ़ हो जाती है ना जब इंटेंस, डीप हो जाती है जब पॉलिसीज। एज देयर पॉलिसीज बिकम मोर एंड मोर एक्सट्रीम मेनी पीपल स्टार्टेड टू बिकेम अलार्म्ड बाय फेसिस्ट प्रोपेगेंडा। ठीक है। जब उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रही थी ना, तो काफी लोगों के लिए ये एक कंसर्न हो गया था। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ पे है कि अब हमें दिख रहा है, सपोज करो, आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडी सेंटिमेंट्स, लेकिन अगर फार्मर्स की बात करें, उनको जब ऐसा लग रहा है कि अब जो गवर्नमेंट है ना, मतलब उसका जो प्रोपेगेंडा है ना, वो कॉर्पोरेट में ज्यादा है ना, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट पे ज्यादा ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम एक डेवलप्ड नेशन बने, हम क्या कर दे, हम सब कुछ प्राइवेट के हाथ में कर दे। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो इस चीज को उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग का मतलब उनके लिए एक कंसर्न की चीज है, ये एक कंसर्न का विषय है, एक सोचने का विषय है ये, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, यानी कि अब जो गवर्नमेंट है वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने शुरू किए हैं गवर्नमेंट ने, वो वहां की पॉपुलेशन के लिए कंसर्न बन चुका था। ठीक है। द जर्मन एंड इटालियन गवर्नमेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन जस्टिस। जो इटालियन और जर्मन गवर्नमेंट थी वो जस्टिस में इंटरेस्टेड नहीं थी। उनका गोल ये था कि हमें अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना है, चाहे जस्टिस मिले किसी को, चाहे जस्टिस ना मिले। होता है ना ऐसा, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी ऐसा है। वहां पे क्या होता है, एक सिंगल मान लो डेमोक्रेसी नहीं होती, एक सिंगल प्रिंस का रूल होता है। यस, डिक्टेटरशिप, यस एग्जैक्टली, है ना, तानाशाही। ठीक है। तो क्या होता है, वहां पे डिक्टेटरशिप का रूल होता है। तो वही कह रहे हैं कि उनको जस्टिस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। द जर्मन एंड इटालियन गवर्नमेंट वर नॉट इंटरेस्टेड इन जस्टिस, they were aligned on an ideological level and started to execute their policy of ethically cleaning Italy of the so-called unwanted. अब कह रहे कि जो जर्मन और इटालियन गवर्नमेंट थी, उनको जस्टिस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। they were aligned on an ideological level, मतलब वो क्या थी, अलाइन का मतलब इकट्ठे। ठीक है। तो जो जर्मन और इटालियन गवर्नमेंट थी ना, एक ही आइडियोलॉजी पे, आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी? यस, थिंकिंग पे, एक ही सोच पे अलाइंड थी दोनों गवर्नमेंट्स। यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स की जो विचारधारा थी ना, वो क्या थी, सेम थी। और उनका मकसद क्या था, एथिकली
एथिकली का मतलब, हाँ जी, एथिकली, हाँ जी सर, एथिकली, यस, मतलब सीधे साधे तरीके से ना, जो अनवांटेड थे वहां के, अनवांटेड का मतलब द पीपल हु आर नॉट नीडेड देयर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, सपोज करो फ्यू इयर्स अगो ऑस्ट्रेलिया में से क्या था कि इंडियंस पे काफी अटैक हो रहा था, है ना, तो क्या होता मतलब कि उनको वो निकालना चाह रहे थे वहां से। तो सेम वे में इटालियन और जो जर्मन गवर्नमेंट थी ना, वो क्या थी, सेम माइंडसेट रख के, सेम आइडियोलॉजी को ध्यान में रख के, जो अनवांटेड लोग थे, कौन कौन, ज्यूज, ब्लैक, जिप्सीज, इनको वहां से निकालना चाह रहे थे, ठीक है, एथिकल तरीके से। आगे, O'Flaherty on the other hand having socialized with many prominent Jews, अदर दूसरी साइड पे जो O'Flaherty था, having socialized का मतलब, having socialized, what is the meaning of having socialized with many prominent Jews? हाँ जी, मतलब having social relations, है ना, having socialized का मतलब, yes, having social relations किसके साथ, prominent Jews, prominent का मतलब, हाँ जी, prominent का मीनिंग, prominent Jews, important मतलब VIP टाइप में, है ना, prominent का मतलब उस कम्युनिटी के जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनके साथ उसने सोशलाइज। इट मींस O'Flaherty was having social relations or he was having friendship with the prominent Jews throughout his time in Italy, did not adhere to the Nazi ideology, and it was then that he started to act. अब क्या था, did not adhere, what is the meaning of adhere? Accept, मतलब कि मैच नहीं कर रहे थे वो, did not adhere, ठीक है, उसके जो आइडियोलॉजी थी, मतलब जो जर्मन और इटालियन की आइडियोलॉजी थी ना, वो उनसे मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने क्या था, थ्रू आउट द टाइम वो इटली में जब रहा ना, उसके कनेक्शन जूस के साथ थे, और वो जर्मन और इटालियन गवर्नमेंट कर क्या रही थी, उन्हीं को वहां से बाहर निकाल रही थी, तो वो नहीं देख सका इस चीज को, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने did not adhere to the Nazi ideology, and it was then that he started to act, और तब उसने एक्ट करना स्टार्ट किया, protecting innocent Jews and other victims of injustice and keeping them away from the claws of the Italian and German police. What is the meaning of claws? Yes, मतलब देखो क्या था, पूरे इसका क्या आपका क्रक्स अगर निकाले तो ये निकल रहा है इस लैंग्वेज में कि जर्मन और इटालियन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी सेम थी। वो करना क्या चाह रहे थे, उनका मीनिंग ये था कि कोई भी हमारे रास्ते में आए, ठीक है, उनको वहां से हटाना है, और उनका बेसिक पर्पस क्या था कि एथिकल वे में जो अनवांटेड थे वहां के, अनवांटेड का मतलब जिसको वो नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ पे रहे, उनको वो निकालना चाहते थे। लेकिन O'Flaherty इटली में थ्रू आउट द टाइम जब वो इटली में रहा, उसके जो कनेक्शंस थे वो ज्यूज के साथ रहे, तो वो उनपे जस्टिस नहीं देख सका, देन ही स्टार्टेड रेजिंग हिज वॉइस इन द फेवर ऑफ जूस के फेवर में उसने अपनी जो आवाज थी वो उठानी शुरू की, और उसने क्या किया, उनको इटालियन और जर्मन पुलिस के पंजे से बचाया, whose orders were to ship them to concentration camp. क्लियर? आगे, हाँ जी, यहां से करते हैं, जरा इस पे आते हैं 16 क्वेश्चन पे। बी के अलावा किसने लगाया, पहले तो ये बताओ। ए, डी, हाँ जी, सी रह गया, सी लगाया किसी ने, सी, एनीवन इन द क्लास, वेरी गुड। देखिए ए में क्या है, हाँ जी, वैसे ना ए इज अ क्लॉज ऑप्शन, अगर देखो तो ए बात ठीक है, बात बिल्कुल सही है, क्या है, were similar to those of Jews, blacks and gypsies who viewed the German interference in Italy as unwanted. मतलब यही कह रहा है कि उसके जो व्यूज थे ना इनकी तरह बिल्कुल सेम थे, और वो जो जर्मन गवर्नमेंट को है ना, जर्मन who viewed the German interference in Italy as unwanted, तो जर्मन की इंटरफेरेंस को इटली में क्या मान रहे थे, अनवांटेड मान रहे थे। लेकिन सच्चाई बताऊं, कोई बात नहीं है उसकी, वहां पे कोई भी बात नहीं है इसकी, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है, जिसने शुरू वाला पढ़ लिया ना, वो सिमिलर टू दोज ऑफ ज्यूज, वहां पे कंफ्यूजन आ सकती है, ठीक है, लेकिन कोई भी बात नहीं है ऐसा कि क्या है, वर्ड्स पढ़ो जरा, वर्ड्स सिमिलर टू दोज ऑफ ज्यूज, blacks and gypsies who viewed the German interference in Italy as unwanted। कह कि उसके जो व्यूज थे ना, ज्यूज, ब्लैक्स और जिप्सीज की तरह बिल्कुल सेम थे,
who viewed the German government interference, जो कि ये मान रहे थे कि जर्मन का जो इंटरफेरेंस है ना वो इटली में क्या है, अनवांटेड है, ठीक है। इसकी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं की गई। सी पे आते हैं, were in keeping with the stated views of German and Italian government। हाँ जी, were in keeping with the stated views of the German and Italian government। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात है। हाँ जी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, क्या मीनिंग है इसका? were in keeping with the stated views of German and Italian government। हम इधर लगाए ना सी, क्या मीनिंग है? प्लीज क्लैरिफाई, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब तो ये निकल रहा है, बिलीवर मतलब उसके जो व्यूज थे ना जर्मन और इटालियन गवर्नमेंट के बिल्कुल सेम थे। ऐसा था क्या? ऑफ क्लैरिटी के व्यूज सेम थे क्या जर्मन और इटालियन गवर्नमेंट के? बिलीव वर इन कीपिंग विद द, वर इन कीपिंग का मतलब अगर यहाँ पे लगा देंगे ना वर सेम, तो एक ही बात है। वर इन कीपिंग का मतलब वर सेम, तो ये तो गलत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, सेम थोड़ी थे। उसने तो आवाज उठाई थी, तो ये तो रॉन्ग हो गया बिल्कुल ही। इसका मतलब नहीं पता होगा तभी गलत कर दिया है ना। ओके, डी पे आते हैं। वर सिमिलरली हॉस्टाइल एंड एक्सट्रीम एज ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फेसिस्ट प्रोपेगेंडा। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। He was not influenced by fascist propaganda। वो उस प्रोपेगेंडा को बिलीव नहीं कर रहा था, उसके साथ नहीं था, वो तो ऑपोजिट में था। फेसिस्ट प्रोपेगेंडा तो कौन अपना रहे थे? जर्मन और इटली गवर्नमेंट अगेंस्ट ज्यूज, अनवांटेड, है ना। और जबकि यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि सिमिलरली हॉस्टाइल एंड एक्सट्रीम थे, किसकी तरह? फेसिस्ट प्रोपेगेंडा। रॉन्ग है ये भी। बी ऑप्शन पे आओ। वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंक्लूजन्स he had drawn from socializing with certain groups of people in the past। यही तो रीजन था, सेम रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि उसने जो वहां के अनवांटेड थे, ज्यूज थे, प्रोमिनेंट ज्यूज थे, उनके साथ उनका सोशल रिलेशन था, इसी वजह से उसके बिलीफ आए थे। he had drawn from socializing with certain groups of people in the past, क्योंकि वो उनके साथ उसकी सोशल लाइफ अच्छी थी, ठीक है। उसी वजह से क्या था कि उसने इसके कंक्लूजन थे कि ये गलत है। फेसिस्ट प्रोपेगेंडा का मतलब ये होता है कि किसी के भी तरफ ना आप एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लो, मतलब होता है ना किसी को शोषण किसी का कर दो, इस उसमें कंटेक्स्ट पे यूज हुआ है यहाँ पे। यस, क्लियर है बेटा? इसकी तो सेम लैंग्वेज थी, इसमें तो गलती का कोई चांस ही नहीं था। ठीक था ना? नहीं थे? ओके, लक्ष्य ठीक था ये? गुड, ठीक था। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना बेटा? एमसीक्यूज में एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी ही काम करेगी, कोई और स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, ठीक है। एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी से ही काम करना है एमसीक्यूज में। और रविंद्र ये तो बहुत आसान था, थर्ड तो लास्ट वाला एमसीक्यू तो बहुत इजी था, सेम लैंग्वेज यूज हुई थी, इसमें तो डाउट की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे आंसर्स दर्ज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आओ, 17-18 पे। Where did O'Flaherty conceal the people he had taken into his care? What is the meaning of conceal? Conceal here, छुपाना, hiding, ठीक है। Where did O'Flaherty conceal the people he had taken into his care? ठीक है, मतलब O'Flaherty ने कहाँ पे लोगों को छुपाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। O'Flaherty used his old college and indeed his own official residence as hiding places for the people he was trying to protect। उसने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दो जगह का यूज किया, एक तो उसका ओल्ड स्कूल और एक उसका ऑफिशियल रेजिडेंस। आगे पढ़ते हैं। As the situation got more and more desperate, मतलब खराब, जैसे जैसे सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई, and number of people threatened grew। इसका क्या मीनिंग है? और ऐसे लोग जिनको धमकियां मिल रही थी उनका नंबर जब बढ़ा, he even turned to using monasteries and convents as hideouts। hideouts का मतलब छिपने की जगह। उसने किस किस का यूज किया? मोनेस्ट्रीज का मतलब रिलीजियस प्लेसेस, एंड कॉन्वेंट्स का यूज किया। कॉलिंग इन फेवर्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड्स इन दीज प्लेसेस हु, अभी आगे पढ़ेंगे, पहले इस क्वेश्चन के आंसर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, आइए। ए है इन द प्लेस एट विच ही वाज देन स्टडीइंग। देन स्टडीइंग का मतलब जहां वो तब पढ़ रहा था, उस टाइम पे। अब तो पढ़ाई थोड़ी कर रहा था, है ना।
मतलब देन स्टार्टिंग मतलब उसका जो अभी एग्जिस्टिंग स्कूल है, ये तो बात ही नहीं है, गलत है ये तो। ओल्ड स्कूल यूज किया है, ओल्ड स्कूल का मतलब उसका पुराना स्कूल, गलत होगी वाले स्टेटमेंट तो। बी पे आइए, इन अ फॉर्मर कॉलेज दैट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ अपार्टमेंट्स, कहीं बात ही नहीं है कहीं बात इसकी? नो। अच्छा ई पे आइए, इन द हाउसेज ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ हिज, है कहीं बात? अच्छा एक बार सी पढ़ते हैं, इन द प्लेस वेयर ही ऑफिशियली लिव्ड एट टाइम, स्ट्रेट अवे गिवन, है ना, इन हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। ऑफिशियल रेजिडेंस का मतलब द प्लेस ही वाज लिविंग देन, जब मतलब उसी टाइम पे जिस वो जगह पे रह रहा था वहां पे, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इन द रेजिडेंस ऑफ सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स, हाँ जी, इन द रेजिडेंसेस ऑफ सर्टेन religious groups, कि है ना, even turn to using monasteries and convents as hideouts. Yes, ma'am. Straight away given. I think ये तो किसी का गलत नहीं होगा। No, ma'am. तीन लगाया। Old friend कहाँ given है? Next line अभी in the house of old friend only. Calling in favor from. बेटा वो तो फेवर का मतलब हेल्प है, वो आगे अलग बात कही गई है, अभी पढ़ते हैं हम, ठीक है। अभी उसने फेवर लिया था ना, वो एक देखते हैं। कॉलिंग इन फेवर्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड्स इन दीज प्लेसेस हु, मतलब उसने क्या लिया था, अपने पुराने फ्रेंड्स का फेवर लिया था, हु बाय एग्रीइंग टू हाउस द अनवांटेड वर नॉट जस्ट रिस्किंग अ reprimand from the faces had they been caught, but were endangering their own lives by being party to O'Flaherty's campaign। मतलब क्या था कि वो ना उसने छुपाया तो उनको इसी में था, मोनेस्ट्रीज और इसमें अपने कॉन्वेंट्स में, ठीक है। हो सकता है वो जो मोनेस्ट्रीज और कॉन्वेंट्स हो उसके ओल्ड फ्रेंड से रिलेटेड हो, है ना। मतलब कहाँ उसने छुपाया था, जगह कहाँ थी, जगह की बात कही, जगह कौन कौन सी थी, मोनेस्ट्रीज और कॉन्वेंट्स, हाँ जी। कौन कौन सी जगह बोली है, एक उसको ऑफिशियल रेजिडेंस बोला है, एक उसका ओल्ड स्कूल, उसके बाद दो जगह और बोली है, मोनेस्ट्रीज और कॉन्वेंट्स। ये भी ये पॉसिबिलिटी कि जो मोनेस्ट्रीज और कॉन्वेंट्स उसके ओल्ड फ्रेंड से रिलेटेड हो, उसके ओल्ड फ्रेंड्स का स्पेस हो। आगे उसने क्या बात बोली है, कॉलिंग इन फेवर्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड्स इन दीज प्लेसेस हु, लैंग्वेज देखना एक बार जरा, कैसे बात को कहा है उसने यहाँ पे। कॉलिंग इन फेवर्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड्स इन दीज प्लेसेस हु, जो कि बाय एग्रीइंग टू हाउस द अनवांटेड, ठीक है, जिन्होंने एग्री किया था अनवांटेड को घर देने में, were not just risking a reprimand from the fascists had they been caught, but were endangering their own lives by being party to O'Flaherty's campaign। मतलब क्या है, इस लाइन को ध्यान से समझो, कौन समझाएगा इसका मतलब, तब ट्राई करोगे। जैसे सिचुएशन और ज्यादा बुरी होती गई, जैसे जैसे सिचुएशन और ज्यादा खराब होती गई, उसने कहाँ छुपाना शुरू किया, कौन कौन से प्लेसेस का यूज किया, उसमें छुपाना शुरू कर दिया। ओके। और जिसमें अपने अपने दोस्तों को फेवर में लिया, तो वो ना तो अपनी लाइफ को मान लो कर रहे थे, रिस्क कर रहे थे, मतलब देखिए क्या है इसका, सिंपल सी बात है, क्या किया, प्लेसेस की यहाँ पे बात हुई थी, क्या था कि वेयर डिड ओफ्लैटी कंसील द पीपल, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्लेसेस की बात थी, कि जगह की बात थी, कहाँ कहाँ छुपाया था, ठीक है, कौन कौन सी जगह पे, मोनेस्ट्रीज पे, और कहाँ पे, ओल्ड स्कूल में, और एक और कॉन्वेंट्स में, यहाँ छुपाया था। और उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड्स का फेवर लिया उनको छुपाने में, ठीक है, जो कि उसका फेवर करके ना ही सिर्फ रिस्क कर रहे थे, पर नॉट जस्ट रिस्किंग अ रिप्रिमेंड फ्रॉम द फेसेस, मतलब एक गलत एटीट्यूड, या मतलब वो जो फेसेस थे ना उनपे क्या वो अटैक कर सकते थे ऑपोजिट में, यानी कि उसका जो रिजल्ट होना था वो खराब हो सकता था अगर उनको पता चल जाता, तो अगर उनको पता चल जाता वो उसको यहाँ तक मार भी सकते थे। दे वर रिस्किंग देयर ओन लाइव्स, क्या लिखा है यहाँ पे, हैड दे बीन कॉट बट वर एंडेंजरिंग देयर ओन लाइव्स बाय बीइंग पार्टी टू ओफ्लैherty's कैंपेन, यानी कि उसके कैंपेन का हिस्सा बनकर, उसकी पार्टी का हिस्सा बनके वो अपनी लाइफ को क्या कर रहे थे, रिस्क में डाल रहे थे। दो हो सकते थे कि क्या था, अगर या तो जो फेसेस थे यानी कि जो इटालियन और जर्मन गवर्नमेंट थी
अगर वो पकड़े जाते ना, उनको पता चल जाता, तो क्या था, उसके जो रिजल्ट थे ना वो बुरे हो सकते थे, ठीक है, उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्या था, अपनी लाइफ उन्होंने क्या कर रहे थे, ओ फ्लैरिटी की पार्टी को, मतलब पार्टी में चले गए थे वो, मतलब उसका साथ दे रहे थे, उसके कैंपेन में उनके साथ थे, और अगर वो पकड़े जाते तो उनकी लाइफ, यहाँ तक कि लाइफ को भी उनकी रिस्क हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। Here 19 question. What impressive aspect of the actions of O'Flaherty's helpers does the writer highlight? हाँ जी, O'Flaherty's के helpers कौन थे, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, who were the helpers of O'Flaherty's? हाँ जी, friends. What impressive aspect of the actions of O'Flaherty's helpers does the writer highlight? ठीक है, यानी कि कौन कौन से इंप्रेसिव एस्पेक्ट यानी कि एक्शंस के बारे में बात की है, किसके बारे में, ओफ्लैरिटीज के हेल्पर्स के बारे में। ए ऑप्शन पे आओ, हाउ ईगर दे वर टू हेल्प हिम, कितने उत्साहित थे उसको हेल्प करने में। नोवेयर मेंशन, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं था कि दे वर ईगर। ईगर का मतलब एक्साइटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगर? एक्साइटेड, कि दे वर एक्साइटेड, लिखा है कहीं पे? एनीवेयर मेंशन कि दे वर एक्साइटेड टू हेल्प हिम? नो। हाउ मेनी ऑफ देम वर विलिंग टू वॉलंटियर? कहाँ है कहीं ऐसा? कितने लोग वॉलंटियर करने के लिए तैयार थे? मेंशन ही नहीं है। डी पे आओ, देयर एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क टुगेदर। हाँ जी, उनकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज की बात हुई है कहीं पे? अगर सी पे आए, देयर डिसरिगार्ड फॉर द पॉसिबल consequences if they were caught. What is the meaning of disregard? हाँ जी, इसके कंटेक्स्ट में डिसरिगार्ड का मीनिंग क्या होगा? डिसरिगार्ड, यस, वेरी गुड, इग्नोरेंस, है ना? डिसरिगार्ड का मीनिंग क्या है? इग्नोरेंस। नहीं भी पता था ना मीनिंग, तब भी बन जाता। Their disregard for the possible consequences if they were caught. उनकी इग्नोरेंस किसकी? पॉसिबल consequences की, अगर वो पकड़े गए। It means they were ignoring the possible consequences if they would have been caught. उसको इग्नोर कर रहे थे, डिसरिगार्ड कर रहे थे। It means उनका ध्यान नहीं था, वो उसकी हेल्प कर रहे थे विदाउट थिंकिंग कि what would happen if they will be caught. अगर उनको पकड़ लिया गया तो क्या होगा? साफ साफ मेंशन है इसे। ये किसी का गलत था? Anyone in the class? प्लीज हेजिटेट मत करो। रोहित क्या लगाया? हाउ ईगर, कई बात है बेटा, सच वही बात है, ट्रिक्स खत्म हो जाएगी समझाते समझाते, गलतियां नहीं खत्म होती, बात ही नहीं है कहीं, इतना डिटेल में करवाते हैं इसीलिए, फिर भी पता नहीं कहाँ दिमाग होता है तुम्हारा। तो समझाया था ना एमसीक्यूज वाली क्लास में, जो नॉट गिवन है उसको एलिमिनेट करो। डाउट सिर्फ क्लोज ऑप्शन में रहना चाहिए, ओनली क्लोज ऑप्शन में। हाँ जी, 20th पे आइए। 20th, why was O'Flaherty nicknamed the Skull Pimpernel of the Vatican? उसको ये नाम क्यों दिया गया था? हाँ जी, किस किसने लगाया सी? हाँ जी, यस बेटा, yes. By the end of the war, over 6,500 Jews and American and British soldiers had O'Flaherty to thank for their escape from the Germans and a nearly certain death. By the end of the war, मतलब कि war खत्म होने तक, by the end of the war, 6,500 Jews and American and British soldiers had O'Flaherty to thank, मतलब 6500 Jews और अमेरिकन और ब्रिटिश सोल्जर्स ऐसे थे जो कि किसको थैंक कर रहे थे?
ओफ्लैरिटी को फॉर देयर एस्केप, एस्केप का मतलब उनको भगाने के लिए, फ्रॉम द जर्मन्स एंड अ नीयरली सर्टेन डेथ, मतलब कि मौत के मुंह से बाहर आए थे, ठीक है, क्योंकि वो मौत के मुंह से बाहर आए थे और उनको भगाने में हेल्प की थी ओफ्लैरिटी ने, तो 6500 पीपल वर थैंकिंग ओफ्लैरिटी फॉर द हेल्प। यहां तक समझ में आया? आगे देखिए, हिज सक्सेस इज नेवर बीइंग आइडेंटिफाइड व्हेन ऑन अनऑथराइज्ड रेस्क्यू मिशंस आउटसाइड ऑफ वेटिकन सिटी। हिज सक्सेस इज नेवर बीइंग आइडेंटिफाइड, उसकी सक्सेस को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया व्हेन ऑन अनऑथराइज्ड रेस्क्यू मिशंस आउटसाइड ऑफ वेटिकन सिटी, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड रेस्क्यू मिशंस कर रहा था ना, अनऑथराइज्ड मतलब छुप छुपा के रेस्क्यू कर रहा था, तो उसकी जो इसका जो उसने काम किया था उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। आगे, हाँ जी, रेस्क्यू मिशन बचाना, रेस्क्यू का मतलब बचाना, रेस्क्यू मिशन मतलब जो अनवांटेड थे उनको बचा रहा था वो वहां से, है ना, और क्योंकि छुप छुप के बचा रहा था तो उसकी सक्सेस को कभी भी किसने आइडेंटिफाई नहीं किया। And in smuggling Jews and allied airmen inside the city led to him being given the nickname of Karl Pimpernel of the Vatican, ठीक है, and in smuggling Jews, और उसने क्या किया था, Jews को smuggle and allied airmen inside the city led to him being given the nickname, क्योंकि उसने क्या किया था, जूस को बचाया था उस सिचुएशन से, उनको स्मगल किया था अनऑथराइज तरीके से। एक तो उसकी सक्सेस को कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया क्योंकि वो अनऑथराइज तरीके से सारे काम कर रहा था, लेकिन वो जो लोग थे ना जिनको उसने बचाया था, उसने उनको क्या नाम दिया, कार्ल पिम्परनेल ऑफ द वेटिकन। अब ये वाली जो नेक्स्ट लाइन है ना, यहां से आंसर है इसका। एंड एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब, एक्नॉलेजमेंट का मतलब, एक्नॉलेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट? हाँ जी, पहचान, ठीक है, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हाउ मच द मास्टर ऑफ डिस्गाइज ओफ्लैरिटी हैड बिकम, मतलब कितना ज्यादा वो मास्टर ऑफ डिस्गाइज ओफ्लैरिटी बन चुका था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज? मतलब यस, मास्क, ठीक है, मतलब कितना ज्यादा वो मास्टर बन चुका था भेष बदल के लोगों को बचाने में, इसकी वजह से ही उसको ये जो टाइटल है वो दिया गया था। जस्ट बिकॉज ही वॉज यूजिंग, मतलब क्या था, वो मास्क का यूजेस कर रहा था या वो एक भेष बदल के लोगों को बचा रहा था, उसकी वजह से द टाइटल ऑफ कार्ल पिम्परनेल वाज गिवन टू हिम, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई वाज ओफ्लैरिटी निकनेम्ड? अब जरा पढ़ते हैं। He resembled a Karl Pimpernel in the disguises he used to wear. हाँ जी, कहीं बात है ऐसी? B पे he often disguised himself as a Vatican priest. हाँ जी, कहीं given है कि वो अपने आप को दिखाता था कि मैं Vatican priest हूँ, पंडित हूँ। No. उसके बाद he had earned masters in the art of disguise. उसने masters की थी art of disguise में? No. C, he had successfully used disguise to avoid being identified, ठीक है, मतलब कि अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को पकड़े जाने से अवॉइड करने के चक्कर में उसने क्या करा था, सक्सेसफुली डिस्गाइज का, यानी कि सक्सेसफुली भेष बदल के अपने आप को शो किया ताकि वो पकड़ा ना जा सके। और यहाँ पे ये बात की है, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हाउ मच द मास्टर ऑफ डिस्गाइज ओफ्लैरिटी हैड बिकम। समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट? हाँ जी, एनी डाउट इन एमसीक्यूज? नो मैम। बेटा एमसीक्यूज की कोई ऐसा है कि जिसको एमसीक्यूज में हेल्प मिली हो क्लास के बाद? एनीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैम अब थोड़े से तो मुश्किल लगने लग गए, पहले से कम, थोड़े कम मुश्किल लगने लग गए। यस, एनीवन? है कोई ऐसा? गलतियां कम हो रही हो पहले से? ओके, कुछ और स्ट्रैटेजी बताओ, किसी और स्ट्रैटेजी से पढ़ाएं ताकि एमसीक्यूज गलत ना हो। यार मेरे ख्याल अगर इस स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे तो एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे। आगे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में व्हाट इंप्रेशन डज द राइटर लीव अस? यस, बी क्वाइट। What impression does the writer leave us with of his own personal feelings with respect to O'Flaherty's life and achievement? ठीक है,
what impression does the writer leave us with of his own personal feelings? मतलब उसने अपने पर्सनल फीलिंग्स में क्या बताया ऑफ क्लैरिटी के बारे में, ठीक है? गिवन है नहीं? Yes, ma'am. Where? Last चलो पढ़ते हैं. in depth he remembers. यहाँ से पढ़ो. In life, he saved thousands of innocent Romans. Rahul. In life, he saved thousands of innocent Romans. In death, he is remembered as a man who bravely stood up to extremism and who was not prepared to turn a blind eye to injustice. मतलब जो लाइफ में in life he saved thousands of innocent Romans. एक्चुअल में रियल लाइफ में उसने हजारों रोमन्स की जान बचाई थी और इन डेथ में यानी कि मरने के बाद ही इज रिमेम्बर्ड, उसको याद किया जाता है एज अ मैन हु ब्रेवली स्टूड अप टू एक्सट्रीमिज्म, जो कि ब्रेवली यानी कि ब्रेव यानी कि बहादुर तरीके से क्या हुआ, खड़ा हुआ एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट एंड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब वो एक ऐसा पर्सन था जो कि आंखें बंद करने को तैयार नहीं था इनजस्टिस के लिए. मतलब कई होते हैं ना कि दे टर्न अ ब्लाइंड आई, कि जो होता है लेट इट बी, बट ही वॉज नॉट रेडी टू डू दैट. ठीक है, उसने अपनी आंखें खोली और लोगों की जान बचाई. और यहाँ पे क्या गिवन है? He admires of Clarity's bravery and determination to stop injustice. Straight away given? Yes. लक्ष्य ठीक था? किस किस का गलत था ये? तरसेम में गलत था. सही है मैम, मेरे को बाद में ध्यान आया. थोड़ा सा सही है. बेटा और किस किस का गलत था? Please raise your hands. आपका ठीक था बच्चे? लेट आया. बस यही कहानी है हमारी, है ना? आए लेट शुरू ठीक हुई. था? ओके. यस, फिलिंग द ब्लैंक्स पे आइए. 20 सेकंड में प्रॉब्लम थी? नो मैम. बता दो ये. हैं? नो मैम. ओके. ओ क्लैरिटीज, ये ऐसा था ना, मतलब पूरी रीडिंग में से फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए इसमें, लेकिन आसान थे, है ना? किस किस के चारों ठीक थे फिलिंग द ब्लैंक्स? ओके, चलो देखते हैं. O Flaherty's personal beliefs were at loggerheads with fascist ideology, which he saw as mindless propaganda. So he took it upon himself to combat the injustices being perpetrated against Jews and other minority groups at the hands of the German and Italian police, who, acting on orders from above, were rounding sad groups up to be sent to. साफ गिवन है और वर्डिंग भी गिवन है इवन. Were to ship them to, were to send them to concentration camps. हाँ जी, ये आपका जो थर्ड पैराग्राफ है बिल्कुल लास्ट में. Were to ship them to concentration camps. Were to send them to concentration camps. साफ गिवन है. हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए. Initially, O Flaherty used familiar places. इसकी लोकेशन क्या है? नेक्स्ट पेज. हाँ जी, लास्ट वाली लाइन पढ़ो. In helping O Clarities, these friends showed their bravery, as getting dash might have cost them their lives. कहां से उठाया ये वर्ड? यहां से. They had been caught but were endangering their own life by being party to O Clarity's campaign. और देखो इन्होंने पता क्या किया? ये जो बात इन्होंने बोली है ना, कॉट, एक बार कोट छोड़ दो, might have caused them their lives, ठीक है? और कोट यहाँ पे जो टेक्स्ट में कोट दिए हुए ना, कोट के बाद की लैंग्वेज पढ़ो. But were endangering their own lives. सेम है ना? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? But were endangering their own lives यहाँ पे, और वहां पे क्या लिखा हुआ है? Might have caused them their lives. Can you relate? Relate कर सकते हो? और caught बहुत इजीली फिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? As getting dash, getting caught, अगर पकड़े गए तो हो सकता था कि उनकी जान भी चली जाए. और सेम बात यहाँ बोली है कि agree, not just risking, they had they been caught, had they been caught, अगर वो पकड़े जाए. और यहाँ पे भी सेम, as getting caught, they might have caused them their lives. Clear? Next round. Not all
only did O'Flaherty help the unwanted, he also extended his assistance to fallen dash as well as British soldiers. given है ना यहाँ पे. Next में देखिए, हाँ जी, next passage में देखिए, his success is never being identified when on unauthorized rescue missions outside of Vatican City, ठीक है, and in smuggling Jews and allied airmen inside the city led to him being given the nickname of Scarlet Pimpernel. हाँ जी, कोई और लोकेशन भी है क्या इसकी? ऊपर दी O'Flaherty extended his efforts to for allied airmen. ये देखिए किया हुआ ना, shoot down allied airmen, मतलब shoot down का मतलब fallen, गिरे हुए, और वहां पे shoot down के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? हाँ जी, shoot down के लिए क्या वर्ड यूज किया है? fallen. क्या लिखा है? extended his assistance to fallen. fallen की जगह shoot down भी हो सकता है. shoot down allied airmen और ब्रिटिश सोल्जर्स भी गिवन है यहाँ पे साथ में. ये गलत था ना भावना? कौन सा गलत था? फिर इन ब्लैंक्स हो गया, ठीक. ओके, क्लियर है ये? नेक्स्ट पे आइए. So effective had he been at dash smuggling Jews and servicemen inside that he earned the nickname the Scarlet Pimpernel of the Vatican. O'Flaherty received a huge number of dash. हाँ जी, what is the meaning of accolades? Accolades, gifts. Yes. ठीक है, मतलब गिफ्ट्स का मतलब एक होता है ना उसको पहचान, आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक उसकी ब्रेवरी के लिए उसको जो अवार्ड दिए जाते हैं उसको बोला उसने. यस, रिवॉर्ड्स. इजी था? डन? फिलिप्स लिख देंगे आपके सारे. हाइफन करके लिखा हुआ है. Received many की जगह यूज किया नंबर ऑफ. बेटा एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट. शीट्स कलेक्ट कर रही हूँ, शीट्स वापस दे दो प्लीज. और जिसने भी एक मिनट, वन बाय वन, जिसने भी कुछ लिखा है प्लीज वापस दे दो, इरेज करके उसको. नहीं, ब्रेक नहीं है, एक मिनट अभी नहीं, लिस्टिंग होगी पहले, अभी टाइम है हमारे पास. वेट फॉर अ वाइल, नोबडी विल मूव. बेटा लिस्टिंग कर लो.